So good morning, everyone. Let us start with a very new chapter today of ratio analysis. It is a very important chapter of accounting, which it's very important in your examination point of view. So I've taken this chapter, and you will learn this chapter in such a way that you don't have to mug up the formulas, and you have the easy way of learning it. Okay, and be with me. Just take a copy and a pen with you, and just we will move on to the video. Okay. So next is your liquidity ratios. Now liquidity ratios, they are one type of ratios, right? So just to maintain a copy with it, okay? So I will taking on this chapter in full. Every day I'll just post one video and I'll explain the difficult questions also, whatever we have in the book, whatever possible questions we can have in the book. We'll discuss everything about the ratios so that your ratio analysis chapter can be understood very easily. Okay, so anyone who wants to understand and share the video, you can just share it, subscribe it, and like and follow it, please. Okay, now next is करंट लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? पहले हम ये समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या चीज है, राइट? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ इजीली द कैश conversion can be done, how easily the assets can be converted into cash, कितनी आसानी से हम अपने कैश को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं अपने एसेट्स को. फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को अगर मैं सेल करने जाऊंगी तो मेरी इन्वेंट्री जल्दी से बिक जाएगी क्या? थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? सपोज मैं एफडी है मेरे पास, मैं एफडी को तोड़वाने जाऊंगी, विड्रॉ करने जाऊंगी पैसे उसमें से, तो कितना टाइम लगेगा मुझे? आई थिंक एक टाइम थोड़ा बहुत. आजकल तो फैसिलिटी बहुत ज्यादा है तो फटाफट से 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर हम वैसे बात करें, अगर हम मैनुअली बात करें इस बारे में, तो मान लो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, एक दिन लग गया. अब कहने का मतलब क्या है कि उस एक दिन में और आपके जो एफडी का अमाउंट लेने में आपको टाइम लगा, और जो आपके डोंट गो ऑन द जस्ट डोंट गो ऑन द नंबर, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. दैट इज, अगर जितना एफडी में आपने लिया, जितना एफडी ने टाइम लिया पैसे कन्वर्ट होने में कैश में, उतना टाइम के इन्वेंटरी ने लिया कैश कन्वर्ट होने में? नहीं ना. एफडी ने कम टाइम लिया और इन्वेंटरी ने ज्यादा लिया, ठीक है ना. एफडी हमने फटाफट से निकाल ली, उसमें से जितने पैसे चाहिए थे हमने निकाल लिए. आजकल तो सब ऑनलाइन है तो फटाफट 2 मिनट में निकल जाता है सब कुछ, है ना. तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि लिक्विडिटी का मतलब कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हम उस एसेट को कन्वर्ट करा सकते हैं कैश में. It tells you about the financial position of the business, tells you about the financial performance of the business. It tells you at how much the business, able to business is able to meet the day-to-day obligations of the business, day-to-day expenses of the business. Okay, so there are three types of ratios in this: current ratio, quick ratio, and defensive interval ratio. Ratio is a widely used tool of financial analysis. Obviously, it is very beneficial. It tells you about the strength and weaknesses of the firm, because when firm is able to calibrate the different types of ratios, then it can actually analyze the position of the business. इसमें बहुत तरह की ratios निकलती है, कितना profit हुआ, कितना gross profit था, कितना net profit था, what is the operations ratio, what is the cost of goods sold ratio. So what is the average debtors receivable ratio, average creditors payable, bills payable ratio. So what we're trying to say is the different ratios you calculate over here, and we to be able to understand that how these ratios actually help us understanding where our firm is lacking behind, and why firm is lacking behind, where it needs to do the improvement. Okay, and also what is the growth growth and possibility for growth, as well as the profitability of the business for the next future coming years, and how the business has performed in the previous years. Okay, so this is the way ratio analysis tells you the different things about it. So with I'm not explaining you that much theory right now. I'm just want to explain you the meaning of it so that we can move on to the your practical questions, right? Now, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, इसको लिख लीजिए. एसिड टेस्ट रेशियो एंड डिफेंसिव इंटरवल रेशियो. नाउ सी, जनरली सबको करंट रेशियो बहुत आसान लगती है, बट करंट रेशियो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसमें से आता है, डिफिकल्ट लेवल पे आ जाता है. ठीक है, तो समझ लेते हैं करंट रेशियो क्या होती है. करंट रेशियो हमारी बनती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. ठीक है, सो करंट एसेट्स इज योर, लेट्स से योर करंट एसेट, आपका जो करंट एसेट है वो देखो ये है. करंट एसेट आपकी ये थी,
इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का ही फॉर्मूला है, ठीक है। करंट एसेट्स में हमारे पास क्या चीजें आती हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल मींस द अमाउंट व्हिच द बिजनेस हैज टू कलेक्ट फ्रॉम द डेटर्स। समझ में आ गया? वो तो मेरे लिए एसेट है ना। और एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट इज समथिंग व्हिच गिव्स यू बेनिफिट, something which is a resource to an organization, something which is helping in the production as well as the increasing the revenue generation for the business, as well as it is something which has a future economic value. Please with me write, take with a pen and a copy because there are a lot of things I will be telling and मुझे खुद भी नहीं पता चलता है कि मैं बहुत ज्यादा बता देती हूँ डिटेल में, कई बार बहुत चीजें बता देती हूँ डिटेल में मैं। तो एकदम से कुछ भी चीज आती है तो मेरे को पूरी डिटेल याद आ जाती है उस चीज की, तो फिर मैं सारा बता देती लग जाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी आपके काम का है प्लीज लिखते जाइए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि करंट रेशियो एंड करंट एसेट जो आपके मैंने बताया अभी आपको, तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स क्या होते हैं? दीज एसेट्स बेसिकली वही होते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं हमारी कंपनी के लिए, जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हमारी रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करते हैं, रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करते हैं एंड which are basically revenue generation में help करते हैं, and also they have future economic value, that means they have a scrap value also, residual value also. For example, look at your fan in the room. You're sitting in a room, look at the fan. Is it an asset? Yes, it is an asset because it is a resource to the organization. It is giving you the benefit of soothing experience, giving you, so it is a type of an asset to you. It is giving you the electricity, right? आपको electricity के through आपको क्या आ रहा है? Having a soothing experience, okay, आपको asset मिल रहा है, ठीक है। Next is here it has a future economic value also. Why? Because future economic value is, that means after some years if you try to sell this asset, you can sell it for some future money. So asset समझ में आ गया, current asset समझ में आ गया, the assets which provide the benefit for only 1 year, for 1 year. Current liabilities which provide the benefit, the liabilities which has to be paid by the business within 1 year. All the expenses or the, all the expenses or the liabilities which business has to pay within 1 year, they are called current liabilities. And what are long-term assets and long-term liabilities? Now see, करंट एसेट्स में हमारी वो चीजें आएंगी, ट्रेड रिसीवेबल आपको एक साल का प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड जैसे रेंट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। अब रेंट अपने, जैसे आप किसी घर में आपको जाना होता है, रेंट के लिए में रहना होता है, तो आप कैसे करते हैं? उसको पहले रेंट देना होता है, 1 महीने का एडवांस देना पड़ता है, उसके बाद आप सर्विसेज लेते हो। तो वो आप क्या 1 साल की ज्यादा बेनिफिट लेते हो क्या? 1 साल के बाद भी चलता रहता है वो बेनिफिट आपको? 1 साल के बाद क्यों, 1 महीने के बाद खत्म हो जाता है वो बेनिफिट, right? That means prepaid expense, it is only providing you benefit for more than a month, maximum a month. That means it is again current asset. Cash and cash equivalents. Equivalents का मतलब होता है कैश के बराबर कितना कैश है। जैसे मीन्स सपोज करिए कैश मतलब हमारा नॉर्मल कैश हो गया जो कैश इन हैंड है, जो बैंक में आप कैश रखते हैं या आपकी एफडी बनवाते हैं, इन्वेंट्री जो होती है, ये सब चीजें जो आपकी कैश की इक्विवेलेंट के बराबर है, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, ये सब चीजें हमारी आती है कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नॉट इन्वेंटरी इज देयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मींस एफडी, योर सिक्योरिटीज, योर financial instruments which are basically equal to cash only, because when you will convert them into cash, it can be done easily. Short-term investments, again FD and all those things, when you invest in the FDs or fixed deposits or this thing. And inventories is again the stock of a company. The stock is always perishable. If it is not perishable, then it will fade out of the fashion, or it will go out of fashion. Good technology get upgraded. So in short, the inventories also do not stay longer for a more than a year. So that is why it is called short-term asset or short-term asset or current asset. Current liabilities में bills payable, maybe we might be knowing all the meaning of these terms, but some students who will not be able to understand the meaning of these things, so I'm explaining it. So bills payable is whatever the amount the business has to pay to the creditors. See, when business has to buy something from the creditors, they will have to buy it and pay money to the creditors, right? So when they pay money to the creditors, they take an extra time period, right? So within the extra time period, they have to pay that money. So it cannot be more than 1 year. Okay. Then suddenly creditors again, debentures you cut it down, debentures नहीं आएगा इसमें, and expenses payable is your again current liability. So the total is your 2 lakh divided by 1 lakh is equal to 2. Next we have is
Now, see, total assets is given to you. Total asset is given. Shareholders funds is given. Current liabilities and non-current investments is given. Okay. So इसमें total assets बंद होगी. Current ratio is okay. Current assets is equal to current assets upon current liabilities. So 40,000 divided by 20,000, because total asset is given to you 3 lakhs. Fixed asset is given to you 1,60,000, and non-current investments is given to you 1 lakh. So current assets will be X. So दो ही चीजें होती हैं, फिक्स एसेट होता है और करंट एसेट होता है, राइट? तो फिक्स एसेट is given to you, current asset is not given to you, and non-current investments is given. That means your non-current investments will be your long-term investments. तो ये भी हो गया. This all comes under the asset. Now this तो ये वाला क्या हो गया? X. You take this as X. So 3 lakh is equal to 1,60,000 plus 1 lakh plus X. Current asset is equal to 40,000. Now we know that total assets is equal to total liabilities. So total assets is equal to shareholders assets, shareholders funds plus non-current liabilities plus current liabilities. Now see, हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज के बराबर होता है, ठीक है? टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयरहोल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज. ओके, इसको ही तोड़ना है. जैसे कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा टोटल एसेट हमें लिखना है. टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज में कैसे लिखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारी कौन सी दे रखी है इसमें? नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म हो गई. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ही हो गया. करंट लायबिलिटीज इज नॉट गिवन टू यू. शेयरहोल्डर्स फंड्स इज योर कंपनी का फंड, ठीक है? दिस कैपिटल, ठीक है ना? सो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. दैट मींस टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है? सो टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. यू नो द फॉर्मूला, राइट? इसमें ये भी लिख सकते हो टोटल लायबिलिटीज वाला. ये देखो, एसेट प्लस इक्वल टू टोटल एसेट इज 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 इक्वल टू asset is equal to liabilities plus capital, or total asset is equal to total liabilities, because liabilities of the towards the owner, liabilities towards the third parties. So that is why shareholders funds will come under the heading of capital, right? So this is your answer will be 20,000. So current liabilities 20,000. So 20,000 is given. Current assets the 40,000. Current liabilities 20,000. So it is 2:1 is the ratio. Okay, now calculate current ratio. The working capital is 15,000. Working capital we all know is current. Working capital is equal to current assets minus current liabilities. So why this particular function is like this? Why it is current assets is equal to current assets is equal to capital is equal to current assets minus करंट लायबिलिटीज. वाई? बिकॉज जितना आपके पास होगा उतना ही तो आप चुका पाओगे किसी को. सपोज करो, सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल मतलब द कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एप्लीकेशंस ऑफ द बिजनेस. The capital which is required, money which is required for meeting the day-to-day obligations of the business, day-to-day expenses of the business. Now 15,000 is given to you. That means current assets minus current liabilities is given to you. Working capital का फॉर्मूला होता है current assets upon current assets minus current liabilities, right? Current assets मतलब क्या होते हैं, हमने डिस्कस कर ही लिया है. लायबिलिटीज भी डिस्कस हमने कर लिया. सो इसको माइनस करने का मतलब क्या हुआ? कितने भी जितना आपके पास होगा उतना ही तो आप किसी को दोगे ना. सपोज करो मेरे पास अगर 20 रुपीज है तो ही मैं उसमें से 10 रुपए खर्च कर सकती हूँ ना. तो लायबिलिटी का मतलब देना. अगर मेरे पास 30 रुपए है तो मैं 40 रुपए तो खर्च नहीं कर सकती. दैट मीन्स जितने मेरे पास एसेट्स होंगे कंपनी के अंदर और उतने ही मैं खर्चे रखूंगी. जितने मेरे एसेट्स होंगे उतने ही मैं खर्चे रखूंगी अपने. जितने मेरे एसेट्स होंगे उतने ही मैं अपने खर्चे रखूंगी, ठीक है? तो जितने मेरे एसेट्स होंगे उतने ही मैं अपने खर्चे रखूंगी. अगर तो उस हिसाब से समझ में आया कि इसका फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. याद नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो 15,000 हो गया. टोटल लायबिलिटीज अदर देन शेयरहोल्डर्स फंड्स इज 32,500. टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इज 25,000. अब देखो, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी आए हमेशा सबसे पहले आंसर ये लिख देना अपना. करंट एसेट इज इक्वल टू करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज.
हमें पता है टोटल लायबिलिटीज इसके बराबर होता है। इसमें हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, टोटल एसेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म एसेट एंड शॉर्ट टर्म एसेट, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा जो दे रखा होता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में, उसमें एक्स्ट्रा शेयरहोल्डर्स फंड्स आपको दे रखा होगा, बस वो कैपिटल मान लीजिएगा। ठीक है, चलो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या आता है, टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स विल बी योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेट्स हैं, डेट्स मतलब लोन्स। So total liabilities is equal to current liabilities plus long term debts. So total liabilities is equal to current liabilities minus कर दो उसमें से आप 32,500 माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 7,500। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझ में नहीं आएगा, अदर देन शेयरहोल्डर्स फंड्स। इसका मतलब क्या है, इसमें बोल रहा है सिंपल, आपकी इसने सिंपल ये बोला है कि ये टोटल लायबिलिटीज जो हैं अदर देन शेयरहोल्डर्स फंड्स, मतलब ये लायबिलिटीज जो हैं शेयरहोल्डर्स फंड्स के अलावा है। ठीक है, शेयरहोल्डर्स फंड्स जो है वो इन्होंने दे नहीं रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, तो आपको नहीं निकालना है, लेकिन ये बोल रहा है कि अदर देन शेयरहोल्डर्स फंड्स इज 32,500। टोटल लायबिलिटीज इज अदर देन शेयरहोल्डर्स फंड्स इज 32,500। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज next is working capital is current assets minus current liabilities. So current asset is equal to working capital plus current liabilities. So current asset is equal to 15,000 plus 7,500 is equal to 22,500. Now how you calculate this particular thing? Total liabilities ये समझ में आ गया पहले वाला, total liabilities equal to current liabilities plus long term debts, that is current liabilities plus long term liabilities. So total liabilities का फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। आपको ये पता है कि करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल मैंने आपको पहले बता दिया, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो उसमें बस आप फिट करना है आपको, दो इक्वेशंस बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, इन क्वेश्चंस में इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन देखो तीन तरह की इक्वेशंस बन सकती हैं, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू सी। दूसरा करंट एसेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म एसेट प्लस शॉर्ट टर्म एसेट, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज वैल्यू आप जो बनेगी आपकी बनेगी, कैसे बनेगी, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो तीन रेशियोज बनेंगी, इसमें तीनों रेशियोज याद कर लो, आप कोई ना कोई आंसर मैच कर ही जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज। समझ में आ गया वाला फॉर्मूला? ठीक है, so then you can calculate 22,500 current assets. So you got 22,500 current assets and then you got the current liability 7,500. You got the two equations, solve them, you get the answer is 3:1. Understood? Easy. Okay. Now see, company has current assets of 3 lakhs, current liabilities of 4,40,000. Afterwards, purchase goods for 20,000 on carrot. Calculate the current capital, current ratio after the purchase. Now see, फर्स्ट इज कंपनी के पास कितना था, 3 लाख रुपीज था करंट एसेट्स के, करंट लायबिलिटी थी 1,40,000 की। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने क्या करा, लायबिलिटी कर ली 20,000 कैरेट पे सामान खरीदा, 20,000 गुड्स खरीदे कैरेट पर। देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको बताना है करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। सपोज करिए पहली करंट रेशियो थी, करंट एसेट्स करंट एसेट लायबिलिटीज जो थी कंपनी के पास 3 लाख के थे। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज जो थी वो थी 1,40,000 की थी। ठीक है, आफ्टरवर्ड जस्ट परचेज गुड्स फॉर 20,000 कैरेट, 20,000 रुपए की उन्होंने खरीदारी कर ली बिजनेस ने उधार पर। दैट मीन उसका उधार बढ़ा और गुड्स बिजनेस में आए, दो चीजें क्या हो रही हैं, उसका उधार बढ़ा, दैट मीन लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, और उसका और उसी कंपनी में एसेट भी इंक्रीज हुआ, मतलब गुड्स उसी कंपनी में आ गए, दोनों केसेस में प्लस, लायबिलिटी भी प्लस हो गई और करंट एसेट्स भी प्लस हो गए, दोनों में आप 20,000 से ऐड कर दो, द आंसर विल बी 2:1. Clear? So we'll discuss this in the next video. So thank you everyone. Thank you so much.